लाइक एन एटीएम मशीन कि आप एल्गो ट्रेडिंग कर रहे हो तो मतलब आप पैसा कमा रहे हो। दिस इज नॉट एट ऑल ट्रू. एवरीवन वांट्स टू मेक मनी. तो अगर आपकी स्ट्रैटेजी इज नॉट प्रॉफिटेबल इन द लॉन्गर टर्म तो नहीं होगा. सो दिस आई थिंक इज द ईजिएस्ट ट्रैप फॉर रिटेल कस्टमर्स. वो फोमो के चक्कर में बहुत सारी चीज़ें एग्जीक्यूट कर देते हैं जो नहीं करना चाहिए. Hi everyone, my name is Mehul Jain. I'm product head at 5paisa. So today we have come here for a podcast on algo trading. So algo trading, algo as a word, algo trading काफ़ी टाइम से बातचीत चल रही है इसके अराउंड. There are a lot of people talking around what is algo, how to trade in algo, what all regulations are there. So today we will talk about all of those stuff to help you get in depth of the circular, what it means for you, you as a retail trader, you as a fintech player, you as an API user or you as an algo provider. So we'll go into detail. हम लोग ये सब डेप्थ में बात करेंगे कि किसके लिए कैसे इम्पैक्ट करेगा. So for this let's get started. So we have a special guest today who is a subject matter expert. So please help me welcome Kashish Jain. So she's been a algo trader for quite some time. She has built her own strategies. She has coordinated with a lot of vendors who are into algo trading, and she's got great amount of experience also in terms of following the regulations, how it has evolved over a period of time. So she has closely monitored all of that. So that's the reason we have, and we'll get the best insights from her. So welcome Kashish. Thank you so much, Mehul. It's a pleasure being here. कैसे हो? All good, all good. So before we start, quickly आप आपका background if you can help us, let us know कि क्यों आपने algo trading शुरू किया, क्या आपका background था, and क्यों आपको algo trading, why does it fascinate you? So I'm an engineer. Then I did MBA in finance. So I had best of both worlds to get into this. That's what intrigued me to get into algo trading. 2020 जब मैं actually I got into this field also, finance. That time there was boom of open APIs, right? तो मैं उसको एक्सप्लोर करना चालू किया कि कैसे यूज़ कर सकते हैं. Then eventually I landed up in a product role for algo trading itself. So it was a central stage where I was minutely monitoring what all changes are being done to the regulations for algo trading specifically. So that's what led me here also at 5paisa. I'm again handling a product, right? Trying to understand minutely what all clients want and what they deserve, right? So क्या-क्या data points उनके पास आना चाहिए, क्या-क्या नहीं आना चाहिए. That's what we are doing here at 5paisa as well. Great. So I'm pretty sure आज बहुत ही interesting podcast होने वाला है. You'll get lot of learnings, lot of insights. So please देखिए episode end तक अगर आपको algo trading का details जानना है. I'm pretty sure this will help. Hello Kashish. Hello. कैसे हो? बढ़िया, all good, all good. So algo trading आजकल तो बहुत सुनने में आ रहा है. There are a lot of people who have been talking about algo trading, and good that now SEBI and exchanges have also started considering this as a proper product, and that's the reason इतने सारे circulars, इतने सारे clarifications हमको आए हैं exchanges के साथ. So आज हम सब बात करेंगे, आपकी expertise लेंगे, है ना. And so शुरुआत से शुरू करते हैं. अभी भी आई थिंक काफ़ी जन को वो पता नहीं है एल्गो ट्रेडिंग क्या होता है. जो ऑलरेडी कर रहे हैं उनको पता है, बट जिनको नहीं पता, अगर उनके लिए आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करना है कि क्या होता है एल्गो ट्रेडिंग. सो एल्गो ट्रेडिंग बहुत ही सिंपल टर्म्स में अगर मैं बताऊं, आपका एक लॉजिक है आपके पास. सपोज आप बोल रहे हैं कि बहुत ही सिंपल सा लॉजिक, मेरा स्टॉक अगर 8% ऊपर जाता है तो मुझे स्क्वायर ऑफ करना है, मुझे बुक करना है प्रॉफिट. दिस इज अ वेरी सिंपल लॉजिक. व्हाट यू कैन डू इज यू कैन कोड दिस, ऑटोमेट दिस, स्कैन योर स्टॉक्स विच एवर यू वांट, एंड देन वो ऑटोमेटिकली बाय या सेल हो जाएगा. सो दिस इज अ वेरी सिंपल वे ऑफ सीइंग इट. तो क्या होता है कि आपने एक लॉजिक दिया, आपने एक रूल दिया, उसको आपने कोड किया, ऑटोमेट किया, वेरियस स्टॉक्स को आपने या स्क्रिप्ट्स को आपने स्कैन किया, एंड देन इट विदाउट मैनुअल इंटरवेंशन इट टेक्स इट अहेड. सो सारा बाय एंड सेल ऑटोमेटिकली होता है. सो बेसिकली एल्गो ट्रेडिंग कैन बी रेफर्ड एज ऑटोमेटेड ट्रेडिंग. अच्छा. सो बेसिकली अगर बोल सके इसको कि ये दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ मशीन जो आपका सारा काम, जो भी आपने लॉजिक्स डिफाइन किया है वो पूरा स्टडी कर रहा है, एंड जब भी सिग्नल्स आएगा उसमें तभी वो आपके लिए ट्रेड भी कर देगा. बी इट आपका एंट्री ट्रेड हो या एग्जिट ट्रेड हो,
बट ये सारा काम मशीन कर रहा है. Right. कैन वी से सो? We can. राइट, परफेक्ट. सो ये हो गया बेसिक्स अबाउट एल्गो ट्रेडिंग. लोग एल्गो ट्रेडिंग क्यों करते हैं? इनको एल्गो ट्रेडिंग क्यों करना चाहिए? इससे क्या बेनिफिट होगा यूज़र्स को? और जो भी कर रहे हैं वो क्यों करते हैं? इससे मेन अगर आपको पूछूंगा कि अगर 2-3 मेन बेनिफिट्स अगर इसके हैं तो क्या होंगे आपके हिसाब से? सो एल्गो ट्रेडिंग मेजरली जो लोग करते हैं, मैं जैसे कि मैं खुद भी क्यों एंटर करी थी इस फील्ड में, इज़ बिकॉज एक तो आपके पास फुल टाइम जॉब है. ट्रेडिंग इन इटसेल्फ इज अ फुल टाइम जॉब. तो साथ में करना तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. आपको पता है कब आपको बाय करना है, सेल करना है, बहुत बार तो मिस भी हो जाता है. सो इट इज़ जीरो मैनुअल इंटरवेंशन. मैनुअल इंटरवेंशन रहेगा, आपको पीरियोडिकली आके चेक करना पड़ेगा कि मेरी स्ट्रैटेजी जैसा इंटेंडेड है वैसा वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है. ऐसा नहीं कोड करके छोड़ दिया. बट बहुत ही कम हो जाता है मैनुअल इंटरवेंशन. दैट्स द फर्स्ट बेनिफिट. ओके. सेकेंड बेनिफिट इज इमोशंस. जब आप ट्रेडिंग करते हो, बहुत लोगों से सुना है मैंने कि 8% पे पहुंचा, मोमेंटम पे था, पर मुझे फोमो की वजह से मैंने बुक कर लिया. या मेरा स्टॉप लॉस था तो 5%, पर मुझे लग रहा था रिवर्सल आ सकता है, तो मैंने छोड़ दिया, मैंने नहीं स्क्वायर ऑफ किया. तो ये जो इमोशंस बीच में आ जाते हैं उसकी वजह से आप लॉसेस, आपको लगता है आप कम करने की कोशिश कर रहे हो, आप प्रॉफिट भी कम कर देते हो. सो डिसिप्लिन्ड वे ऑफ ट्रेडिंग इज समथिंग दैट एल्गो ट्रेडिंग इंट्रोड्यूसेस. एंड देन द थर्ड बेनिफिट इज स्केल. आज की तारीख में अगर मैं स्कैल्पिंग कर रही हूँ तो मैनुअल स्कैल्पिंग में एक स्क्रिप्ट को बार बार देख के बाय सेल कर सकती हूँ. क्या मैं उसको 10 पे लेके जा सकती हूँ, 20 पे लेके जा सकती हूँ, 100 पे लेकर जा सकती हूँ. सो दैट स्केल कम्स थ्रू एल्गो ट्रेडिंग. अच्छा. सो एक आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बोली. वैसे तो बाकी बेनिफिट्स भी बहुत ही ज़रूरी है, बट एक जो आपने बोला इमोशंस, मतलब बीइंग अ ह्यूमन इमोशंस तो फॉर श्योर आएगा ही. बीट ग्रीड, बीट पैनिक. तो हाँ, मतलब मेरे लाइफ में भी ऐसा बहुत बार हुआ है कि हाँ, मतलब पैनिक के चक्कर में ऐसा न्यूज़ आया, अपने तुरंत एक्शन लिया और बाद में पता चला वापस वही स्टॉक भाग गया. सो पॉसिबिलिटीज़ बहुत सारी होती है कि हाँ, जब आप इमोशंस आपको ड्राइव करता है तो आप ऐसे थोड़े कभी कभी गलत डिसीजंस ले लेते हो. राइट. आप आपके सेटअप के भी बियॉन्ड जाके आप आपके स्ट्रैटेजीज़ को आप खुद से मैनुअली एग्जीक्यूट करते हो, तो जिसके चक्कर में या तो आप ज़्यादा लॉस कर रहे हो या कम प्रॉफिट कर रहे हो, जिसका पोटेंशियल और ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता था. राइट. ये मेरे को लगता है ये बहुत बड़ा एडवांटेज एल्गो ट्रेडिंग में एज मिलता है, विच इज़ टू कंट्रोल योर इमोशंस, है ना. सो इज़ इट एल्गो ट्रेडिंग न्यू इन आवर कंट्री, या ये काफ़ी टाइम से चला? जितना मेरे को समझ आ रहा है ये काफ़ी टाइम से एल्गो ट्रेडिंग इंडिया में हो रहा है. तो वाई ऑल ऑफ अ सडन आपको लग रहा है कि अभी इसके अराउंड देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर टॉकिंग अबाउट इट, लॉट ऑफ पीपल वांट टू एंटर इनटू एल्गो ट्रेडिंग? इसके पहले मैं और एक चीज़ पूछूंगा जो मेरे को भी बहुत जन आके पूछते हैं कि एल्गो ट्रेडिंग उनको लगता है कि एक ATM मशीन है. मेरे को पूछ रहे थे यार आज कौन सा नया स्ट्रैटेजी है आप बताओ. एंड एक्सपेक्टेशन का ये रहता है कि हाँ, अगर आप एल्गो ट्रेडिंग में कर रहे हो मतलब आप बहुत सारा पैसा कमा रहे हो. तो सबसे पहले एक मिथ क्लियर करो कि इज़ इट दैट हाउ इट इज़ कि आप एल्गो ट्रेडिंग कर रहे हो मतलब इट्स लाइक एन ATM मशीन कि आप एल्गो ट्रेडिंग कर रहे हो तो मतलब आप पैसा कमा रहे हो? सो डेफिनेटली नॉट. दिस इज़ नॉट एट ऑल ट्रू. आप एल्गो ट्रेडिंग में अपने ही रूल्स को डिफाइन कर रहे हो ना, अपने ही रूल्स को ऑटोमेट कर रहे हो. तो अगर आपकी स्ट्रैटेजी इज नॉट प्रॉफिटेबल इन द लॉन्गर टर्म और इट इज नॉट परफॉर्मिंग एज इंटेंडेड तो नहीं होगा. डेफिनेटली स्केल के हिसाब से अगर आपका प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी है तो आप ज़्यादा कमा सकते हो, ज़्यादा स्टॉक्स पे ट्रेड कर सकते हो, ज़्यादा ऑप्शंस पे ट्रेड कर सकते हो, राइट. बट ATM मशीन है बिल्कुल भी नहीं. यू नीड टू हैव सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज, दैट्स वन, और यू नीड टू हैव access to those algos which are driven by subject matter expertise. Interesting. तो इसमें और एक टॉपिक याद आता है मेरे को कि आई थिंक ये वन ऑफ द पार्ट ऑफ द सर्कुलर्स भी था, यू नो. सो देयर आर लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म्स जो एल्गो ट्रेडिंग ऑफर करते थे और वहाँ पे रिटर्न्स भी ये लोग दिखाते थे कि 100% रिटर्न, 200% रिटर्न. तो वो वाकई में पॉसिबल था कि इतना रिटर्न वो लोग जनरेट कर पाते थे, या वो काइंड ऑफ अ ट्रैप था फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स एंड दैट कुड बी वन ऑफ द रीजंस व्हाई SEBI had to come out with these kind of regulations? So this I think is the easiest trap for retail customers. वो FOMO के चक्कर में, टिप्स के चक्कर में बहुत सारी चीज़ें एग्जीक्यूट कर देते हैं जो नहीं करना चाहिए. These are not trustworthy sources. In fact, I would give you one stat.
सो सितंबर 2022 में सेबी ने सारे ब्रोकर्स को कहा दैट इफ़ यू आर लिंक टू एनी ऑफ द थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स विच आर शोइंग obnoxious रिटर्न्स विदाउट एनी प्रूफ देन यू शुड स्टॉप योर लिंकेज एसोसिएशन विद देम देन एंड देयर. करेक्ट. उसके बाद ब्रोकर्स टुक द स्टेप्स राइट, जो भी था उन्होंने अपने आप को डिसएसोसिएट किया उनसे. एंड देन इन 2025 फाइनली दे हैव कम अप विद द गाइडलाइंस. काफ़ी मीटिंग्स हुई इस बीच में. आई थिंक 2024 में फोरम बन चुकी थी. अच्छा. दे वर डिस्कसिंग द इश्यूज एंड व्हाट वाज द प्रॉपर वे ऑफ गोइंग अहेड. Because it was not about just regulation, it was about safeguarding the retail participants, Correct. which is correctly the name of the circular as well. Safeguarding the retail algo customer base, right? And then SOP आया है from NSE, BSE and various exchanges, which gives much needed clarity. So that's how it evolved. I think SEBI का हमेशा एक बहुत ही पॉजिटिव एंड प्रेगमेटिक अप्रोच रहा है इस बारे में कि टेक्नोलॉजी के साथ आगे तो बढ़ना ही है, बट उसको कैसे हम लोग सेफ गार्ड भी कर सकते हैं. हाउ टू डिक्रीज द नंबर ऑफ इश्यूज दैट द people can face is something that they were looking into. And finally, I think because ये थोड़ा complex है and not that everybody understands and थोड़ा बहुत software development भी involved है, you know, so not that everybody understands कि इसके nuances क्या है, so chances of people falling for it, especially retail people जिनको नहीं समझ है इतना अभी भी, तो उनके लिए I think it's much better decision from coming from SEBI to, you know, regulate this and protect these traders जो otherwise they would have made maybe lot of losses. Right. है ना? Nice. So I think SEBI has done a tremendous job in getting through all of these circulars and now finally can we say so कि अभी सारे doubts जो है वो अभी clarify कर दिए हैं अभी now it's just that implement and then you can get going. So implementation currently we are still on the front end. So NSE has Init platform, right? They have not implemented it on the front end yet, but the guidelines are pretty clear on how you should be going forward. If you are a retail customer, tech savvy customer, how you should be going forward. If you are an algo provider, what all steps are to be followed, and if you are a broker, what all changes are to be done, because now broker becomes the principal and every other person, may it be third party, may it be retail customers, they become the agents. They become the agents. Yes. So broker is the principal and they are, मतलब rest everybody is the agent. Correct. Rest everybody primarily आपने दो parties का नाम लिया, which is one is a retail tech savvy trader and दूसरा is algo provider. Right. सबसे पहले थोड़ा सा डिफरेंस बता दो, ये दोनों में डिफरेंस क्या है कि कौन रिटेल ट्रेडर बोला जाता है और कौन algo provider बोला जाता है. So retail trader is solving problem for himself or the family members, right? Okay. तो अगर आज की तारीख में मैं आती हूँ, मैं एक एल्गो बनाती हूँ, मैं अपने आप के लिए कर रही हूँ रजिस्टर या बाकी सबके लिए अपनी फैमिली मेंबर में कर रही हूँ, then I am a retail trader, tech savvy trader. ओके, राइट. सो आप खुद ही आपका एल्गो बना रहे हो, बट आप यूज भी आप ही कर रहे हो या आपके फैमिली मेंबर्स के लिए यूज कर रहे हो? दोनों के लिए कर सकते हैं, दोनों राइट, के लिए बिकॉज कर इट कैन बी मेड अवेलेबल एज पर द सर्कुलर फॉर यू वंस यू हैव टेकन द एल्गो आईडी, इट कैन बी अवेलेबल फॉर यू एज वेल एज द फैमिली मेंबर्स. ओके. सो ये रिटेल कस्टमर बोला जाता है या रिटेल टेक सेवी कस्टमर, एज पर सर्कुलर नाम जो बोला जाता है रिटेल टेक सेवी क्लाइंट, ऐसे ही है, राइट? रिटेल टेक सेवी क्लाइंट. रिटेल टेक सेवी क्लाइंट. और दूसरा उन्होंने फोकस किया है एल्गो प्रोवाइडर. तो वो कौन होता है, एल्गो प्रोवाइडर कौन होता है और उनके फर्स्ट ऑफ ऑल कौन होता है, किसको एल्गो प्रोवाइडर बोला जाता है? सो एल्गो प्रोवाइडर जो आपको स्ट्रैटेजीज प्रोवाइड कर रहे हैं एट अ लार्जर स्केल, दे आर नॉट सॉल्विंग प्रॉब्लम फॉर वन, दे आर ट्राइंग टू सॉल्व प्रॉब्लम फॉर many people, right? अच्छा, हाँ. So इसमें आप ब्लैक बॉक्स स्ट्रैटेजीज दे रहे हैं, वाइट बॉक्स स्ट्रैटेजीज दे रहे हैं, देन यू आर एन एल्गो प्रोवाइडर, राइट? अच्छा. तो मतलब आपका पहले एम्पैनलमेंट तो होना ही है एज सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर, देन यू हैव टू बिकम एन एल्गो प्रोवाइडर एज वेल. मतलब आपका पूरा फ्रंट एंड रजिस्ट्रेशन वगैरह सब कुछ होगा. अच्छा. सो रिटेल है वो जो खुद के लिए या फैमिली के लिए, और एल्गो प्रोवाइडर है जो मास मतलब मल्टीपल लोगों के लिए अगर वो एल्गो ऑफर करते हैं जहाँ पे क्लाइंट्स आके सब्सक्राइब कर सकते हैं और उनके एल्गो पे वो काम कर सकते हैं. सो ये मेजर डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, राइट? और हमने कॉन्वर्जेशंस में बात करी, जैसे रिटेल कस्टमर के लिए भी अपन ने बोला, या एक एल्गो प्रोवाइडर है जैसे वो एल्गो रजिस्टर करवाता है तो एक एल्गो आईडी चाहिए होता है एज ए मैंडेटरी. तो क्या होता क्या है एल्गो आईडी?
So algo ID is a unique identifier. अब तो बहुत सारे algos चल रहे होंगे on the APIs, right? Correct. कैसे identify करेंगे कि एक particular algo है जो corrupt हो गया है? Runaway algos is something which would be a nightmare for everyone, right? For the broker, for all the exchanges. Correct. तो वो नहीं चाहते हैं हम लोग. अच्छा. Right? तो algo ID is a tagging जहाँ से आप पता लगा सकते हो कि कौन सी algo ID is corrupt, and you can have a kill switch also. Kill switch is also a mandatory requirement for all the brokers to have. So basically algo ID is to identify कि अगर कभी for example misfire हो गया algos या it is not working the way supposed to work. Correct. तो easily it can be identified कि ये algo ID कौन से user का है और कौन से algo का है. Correct. So for that algo ID is very important. Yes. Okay. So अभी ये जो सर्कुलर है, जैसे अपन ने बताया कि ये 2 पार्टीज प्राइमरली इन्वॉल्व है जिनके लाइफ में इम्पैक्ट आने वाला है. सो एक एक करके जाते हैं. सबसे पहला एक रिटेल इन्वेस्टर. तो अभी आफ्टर दिस सर्कुलर गोइंग लाइव विच इज़ 1 अक्टूबर, तो उनके लाइफ में क्या क्या बदलने वाला है, उनको क्या क्या चेंज करना पड़ेगा सो दैट दे आर कम्प्लीटली कंप्लाइंट विद द न्यू सर्कुलर. So for retail tech savvy customers, there is first requirement is static IP, right? Static IP तो होनी ही है. So you can define 2 IPs, one is primary, one is secondary. You can change it every weekly. उससे ज़्यादा अगर आपको change करना है, कुछ बहुत ही बड़ा issue आ गया, you can contact your broker. That has also been mentioned, Okay. right? तो as रिटेल टेक savvy कस्टमर पहला तो आपको स्टैटिक आईपी चाहिए जो कि आप अपनी ऐप की के साथ रजिस्टर करोगे. स्टैटिक आईपी ये वही आईपी होती है जो सिस्टम्स के लिए जनरली डिफाइन होता है, विच इज़ 4 डिजिट्स, मतलब डेसिमल के साथ 4 डिजिट्स की जो होती है. करेक्ट. सो वो स्टैटिक आईपी है. हाँ. सो वो हर एक को डिफाइन करना है और उनके ब्रोकर सिस्टम में जाके अपडेट करना है. करेक्ट. सो क्यों करना है ये, उससे क्या होगा? तो अभी इसके पहले जो API कॉल्स आ रहे थे या एग्जीक्यूट हो रहे थे उसको मॉनिटर करना बहुत डिफिकल्ट हो गया था. अनवेरिफाइड IPs से आ रहे थे, सेम IPs से आ रहे थे, बट ट्रैक डाउन करना वाज समथिंग जो नहीं कर पा रहे थे. नाउ इट इज अ क्लोज लूप कि आपने बता दिया है कि ये स्टैटिक IP से ही मेरा ऑर्डर आएगा तो इसी पर एग्जीक्यूट करना. अगर किसी और से आ रहा है आपकी वो ऐप की यूज करके देन दैट शुड बी रिजेक्टेड. सो अब ये बोल रहे हो कि अगर स्टैटिक IP, सपोज मैंने XYZ स्टैटिक IP अपने ब्रोकर को दिया, ठीक है, और मेरा ऑर्डर सिर्फ यही IP से आ सकता है. अगर कोई दूसरे IP से अगर ऑर्डर आएगा तो वो हम अलाउ नहीं करेंगे. राइट. करेक्ट. और 2 IP वो प्राइमरी एंड सेकेंडरी की तरह 2 IP डाल सकते हैं. करेक्ट. सो ये सबसे पहला चेंज है. सो सबको अभी सबसे पहले स्टैटिक IP तो अपडेट ब्रोकर के पास करवाना ही पड़ेगा अगर वो एक रिटेल टेक सेवी क्लाइंट है. राइट. सो ये सबसे पहला चेंज है. 2 तरीके हो सकते हैं. क्लाइंट्स कैन टेक इट फॉरवर्ड. एक तो बिजनेस प्लान हो सकता है, आप ISP के पास ही अपने जाएंगे तो बिजनेस प्लान में आपको नॉमिनल चार्जेस पे मिल जाएगा. दैट्स वन. सेकेंड इज कि आप एक क्लाउड इंस्टेंस ले लीजिए. राइट. काफ़ी आई थिंक सस्ते में आ जाता है आजकल. इट्स नॉट दैट कॉस्टली नाउ. ISP इज लाइक आपका जो वाईफाई या इंटरनेट प्रोवाइड करता है आपको घर पे है, या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो है आपका, उसके पास आप जाएंगे तो आपको एक बिजनेस यूज केस के अंदर यू विल गेट स्टैटिक IP. अच्छा. सो फिर वो वाईफाई पे जब भी वहाँ से कोई भी रिक्वेस्ट आएगी थ्रू एन API, तो वो वही IP के साथ आएगी जो आपको आइडियली ब्रोकर के पास रजिस्टर करवाना. करेक्ट. तो ये सबसे पहला चेंज सबको करवाना पड़ेगा अगर आपको API यूज करना है. राइट. और क्या क्या चेंज आएगा फॉर एन रिटेल कस्टमर? तो अगर आपका एल्गो जो है दैट इज ट्रिगरिंग लेस देन 10 ऑर्डर्स पर सेकंड, 10 OPS. 10 OPS. OPS is orders per second. Then there is no additional requirement for you. Okay. Right. But अगर आपके एल्गोज हैं जितने भी 1 2 3 4 5, अगर टोटल में 10 OPS से ज़्यादा ऑर्डर्स जा रहे हैं, then you will have to get your algo registered via broker. So broker would help you with this process. Okay. So OPS is आपने बोला कि ऑर्डर्स पर सेकेंड, कि अगर मेरे सारे स्ट्रैटेजीज, मैंने सपोज एक या मल्टीपल स्ट्रैटेजीज मैंने अपनी एल्गो बनाई हुई है और उसके थ्रू मैं 5 पैसा का API यूज़ करके जब मैं ऑर्डर प्लेस करता हूँ, अगर वो 10 के अंदर है विच इज़ लेस देन 10 OPS, तो मेरे को कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है. अगर 1 या मल्टीपल स्ट्रैटेजीज 10 के बियॉन्ड है तो मेरे को एल्गो ID लेना पड़ेगा. अब ये एल्गो ID कौन देगा?
एल्गो आईडी इज गिवन बाय एक्सचेंज। आप जो भी एक्सचेंज को ऑर्डर भेज रहे हो वहाँ से आपको एल्गो आईडी लेना पड़ेगा। यू कैन गो वाया ब्रोकर, देयर इज अ होल प्रोसेस दैट हैज बीन डिफाइंड इन द सर्कुलर दैट यू कैन टेक एंड मैप टू योर स्ट्रैटेजी। अच्छा, ये अपने पास है प्रोसेस? Yes, we have the process. We can get it. You can contact us. We'll help you get your algo ID. As brokers, we do have it in place. तो इसमें आपको basically अपना एक short strategy description. Again, it is a black box, right? It is your IP. एक short strategy description देंगे. There would be a mock participation. So here broker comes in. कि आपको mock participation में help करेंगे. RMS write up में भी help करेंगे. So we would be helping you getting the auditor certificate as well. अच्छा, वो आपको खुद से ढूंढ कर लाके कि जो रिक्वायरमेंट है सीसो ऑडिटर, वो सब देखने की जरूरत नहीं। वी आर ऑलरेडी हैंडलिंग दैट फॉर यू। अच्छा, राइट, यू कम टू अस विद अ स्ट्रैटेजी राइट अप, मॉक पार्टिसिपेशन होगा, वी विल गेट इट ऑडिटेड बाय एन ऑडिटर टेकिंग एन ऑडिटर सर्टिफिकेट। राइट, उनको मैंने RMS राइट अप, क्योंकि वो ब्रोकर का ही जाएगा, वो चले गया है, एंड देन यू अपलोड इट टू एक्सचेंज विच इज ऑडिटर सर्टिफिकेट, देन RMS राइट अप एंड स्ट्रैटेजी राइट अप। उसके साथ आपका UCC एंड PAN मैप हो जाएगा एज टेक सेवी कस्टमर। ओके, सो इंटरेस्टिंग। बट 3-4 चीज़ें हैं, वापस रिएटरेट कर लेते हैं। एक है, आपने बोला स्ट्रैटेजी का राइटअप। बेसिकली स्ट्रैटेजी का लॉजिक क्या है, ब्रॉडली, नॉट इन डिटेल में भी, थोड़ा ब्रॉड में आपको स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन करना है कि क्या है वो राइटअप। RMS का राइटअप, मॉक में पार्टिसिपेट करना, आपने बोला कि एक्सचेंज का जब भी मॉक होता है उसमें आपको वो एल्गो चला के उसको मतलब पार्टिसिपेट करना, मतलब उसमें आपको एल्गो वो स्ट्रैटेजी रन करना है। करेक्ट। एंड देन लास्ट आपने बोला ऑडिटर सर्टिफिकेट। सो ऑडिटर ये सारे डॉक्यूमेंट्स वैलिडेट करेगा, वेरीफाई करेगा, एंड देन वो सर्टिफाई करेगा वेदर इट कैन बी अपलोडेड टू द एक्सचेंज और नॉट। सो प्राइमरली ये चार डॉक्यूमेंट्स है। ये चारों जब भी आपके पास अवेलेबल होंगे तो हम आपको हेल्प कर देंगे टू अपलोड इट टू द एक्सचेंज एंड गेट द एल्गो आईडी। करेक्ट। क्या होएगा ये एल्गो आईडी जब मेरे को मिल गया तो अभी क्या करना पड़ेगा मेरे को? सो इट विल हैव टू बी मैप्ड। एक एल्गो आईडी करके फील्ड ही होगी, जो डेटा पैकेट है ना, जैसे मैंने आपको बोला था NNF आईडी है, वो ब्रोकर खुद हैंडल कर लेता है। एल्गो आईडी इज समथिंग दैट यू विल हैव टू लिंक टू योर ऑर्डर बेसिकली। सो जब भी मैं ऑर्डर प्लेस करूंगा एंड वो एल्गो के लिए जो एल्गो आईडी डिफाइन मेरे को मिला है, वही एल्गो आईडी मेरे को वो ऑर्डर रिक्वेस्ट के साथ पास करना पड़ेगा। करेक्ट। अगर वो एल्गो आईडी नहीं आया तो आपका ऑर्डर अगेन रिजेक्ट हो सकता है। करेक्ट। ओके, सो एटलीस्ट विद दिस ब्रोकर्स एंड एक्सचेंजर्स वुड गेट टू नो कि एल्गो आईडी जो अप्रूव्ड है वहीं से ऑर्डर्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर नहीं आ रहे हैं तो वो सीधा आपका ऑर्डर रिजेक्ट कर देगा। सो ये इंश्योर करना पड़ेगा कि इफ़ यू आर रनिंग एन एल्गो विच इज़ अगेन ग्रेटर देन 10 OPS, जो आपने तो कुछ टाइम पहले बताया, तो उसमें एल्गो आईडी कंपलसरी। यस। सो हाँ, तो हमने बोला कि स्टैटिक आईपी एंड एल्गो आईडी, NNF आईडी एनीवेज ब्रोकर मैनेज कर लेगा, बट ये दो चीज़ जो है वो क्लाइंट को मैनेज करना है। सेकेंड वाला पार्ट जो एल्गो आईडी है वो 10 OPS के बियॉन्ड आएगा। करेक्ट। इंटरेस्टिंग। सो इसके अलावा बस ये दो चीज़ करेंगे तो देन दे आर कंप्लाइंट। दे आर कंप्लाइंट देन, यस। अंडरस्टूड। सो ये प्रेटी ईजी हो गया, मतलब रिटेल कस्टमर के लिए अभी थोड़ा लाइफ बेटर हो गया है। यस। सो ये तो मैं रिट्रेट करना चाहूँगी दैट इट इज़ अ मैटर ऑफ से 1 अक्टूबर से हो रहा है, राइट? तो इट इज़ अ मैटर ऑफ 2-3 months एंड वंस द डस्ट सेटल्स तो ये बहुत ही कंप्लायंट स्पेस हो जाएगी फॉर कस्टमर्स टू ट्रेड यूजिंग एल्गो, यूजिंग वेरियस एल्गोज हियर। इंटरेस्टिंग। सो ये तो हमने बात किया कि रिटेल क्लाइंट के लिए। सबसे पहले चलो एल्गो प्रोवाइडर को एक्सप्लेन कर लेते हैं कि एल्गो प्रोवाइडर के लाइफ में क्या क्या चेंज आने वाला है। एल्गो प्रोवाइडर जैसे आपने स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया था कि वो एल्गोज मास पब्लिक के लिए बना रहे, पीपल कैन कम, दे कैन सब्सक्राइब, एंड उनका एल्गो जब भी सिग्नल जनरेट करेगा तो क्लाइंट्स के अकाउंट में ऑर्डर्स जाएंगे। करेक्ट। तो अभी इनके लिए भी रेगुलेशन अप्लाई होता है। yes. तो इनके लिए क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं? तो इनके लिए इट इज़ अ 3 to 4 step प्रोसेस। सबसे पहले दे हैव टू गेट एम्पैनलमेंट, एक्सचेंज एम्पैनलमेंट, which is mandatory। okay। उस पे आपको एक वेंडर आईडी मिलेगी। okay। राइट, वंस दैट इज डन यू आर एम्पैनल्ड, then you have to get your UI UX verified। okay। once that is the product itself is registered। यहाँ पे algos अभी तक बात नहीं हुई है आपका। so पहले me as an algo provider एम्पैनल होना है। करेक्ट। एम्पैनल होना है मतलब सो एम्पैनलमेंट के लिए जो फर्स्ट वाली स्टेप है उसमें उन्होंने बोला हुआ है कि ऑलरेडी एम्पैनलमेंट का प्रोसेस
चल रहा है बहुत सालों से, विच इज अच्छा। सॉफ्टवेयर ट्रेडिंग एम्पैनलमेंट। ओके तो जो फर्स्ट स्टेप है वो वही है। ओके सेकेंड स्टेप इज वेयर यू वुड बी टेकिंग द प्रोडक्ट अप्रूवल, बेसिकली द UI UX की प्रोडक्ट क्या करता है क्या नहीं करता है, वेरियस चेक्स दे वुड गो थ्रू। ओके तो वो एक बार ये एक्सचेंज को अपलोड हुआ, देन इट वुड बी गिवन द गो हेड टू टेक एल्गो अप्रूवल्स एंड गेट इन कॉन्ट्रैक्ट विद वेरियस ब्रोकर्स। अच्छा, सो एल्गो प्रोवाइडर्स को डायरेक्टली एक्सचेंजेस के साथ एम्पैनल होना है, सो दैट्स द फर्स्ट स्टेप। करेक्ट। एंड उसका प्रोसेस डिफाइंड है सर्कुलर में, राइट? एंड व्हेन यू डू दैट आपको एक वेंडर आईडी मिल जाएगा। यस। सो ओनली इफ यू हैव अ वेंडर आईडी देन ओनली यू कैन ऑपरेट एज एन एल्गो प्रोवाइडर, राइट। करेक्ट? अच्छा, तो चलो मैंने एम्पैनल कर दिया, मेरे को वेंडर आईडी भी मिल गया, वॉट एवर द एक्सचेंज का नॉर्म्स है और वॉट एवर द ऑपरेशनल गाइडलाइंस दे हैव डिफाइंड, बेसिस दैट हमने वेंडर आईडी ले लिया। नेक्स्ट स्टेप क्या करना होगा मेरे को? आपने प्रोडक्ट अप्रूवल भी ले लिया, प्रोडक्ट अप्रूवल भी ले राइट। लिया। अब नेक्स्ट स्टेप वुड बी गेटिंग इन टच विद वेरियस TMs, राइट, वेरियस ट्रेडिंग मेंबर्स, उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में आना कि एग्जैक्टली क्या रिलेशनशिप रहेगा, क्या कॉस्ट रहेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट। ओके, एक बारी वो साइन हो गया, देन यू हैव टू गेट योर एल्गोज रजिस्टर्ड वाया द TMs. इट हैज बीन स्पेसिफिकली मेंशन्ड दैट व्हाटसोएवर द एल्गो इज, वो टेक सेवी का है, एल्गो प्रोवाइडर का है या ब्रोकर का है, दैट नीड्स टू गो थ्रू अ TM. ओके। यस। सो हर किसी को भी अगर एल्गो अप्रूव करवाना है तो ब्रोकर के थ्रू ही करवाना है, Correct. बीट रिटेल या एल्गो प्रोवाइडर, राइट। अंडरस्टूड। सो आपने बोला एल्गो प्रोवाइडर के लिए पहले एम्पैनलमेंट होना, वेंडर आईडी मिलेगा, एम्पैनलमेंट होने के लिए आपको आपका व्हाटएवर जो प्रोडक्ट है उसका भी अप्रूव करवाना है, एंड देन आप जो एल्गोज आप ऑफर करने वाले हो वो ब्रोकर के थ्रू आपको अप्रूव करवाना है। सो आपने काफ़ी सारे टर्म्स यूज़ किए। सो सबसे पहले जो मेरे को भी थोड़ा समझना है, ये वाइट बॉक्स और ब्लैक बॉक्स आपने जिक्र किया। सो क्या होता है वाइट बॉक्स एल्गोस, ब्लैक बॉक्स एल्गोस, क्या डिफरेंस है दोनों में? सो वाइट बॉक्स एल्गोज, द नेम सजेस्ट कि सब कुछ क्लियर है, राइट। सो जैसा सर्कुलर में भी बोला गया है कि स्ट्रैटेजी आपको नोन है, ओके। इट इज ऑल्सो नोन एज एग्जीक्यूशन एल्गोज। सो आई वुड टेल यू द जिस्ट ऑफ इट। अगर एक लार्ज ऑर्डर है आपके पास प्लेस करने के लिए, सो यू डिवाइड इट इनटू स्मॉलर चंक्स रादर देन सेंडिंग इट ऑल अक्रॉस इन वंस, राइट। तो जब आप ये कर रहे होते हैं तो रादर देन गेटिंग, आपको बेस्ट प्राइस तो नहीं मिलेगी, राइट, बट यू विल गेट अ बेटर प्राइस। करेक्ट। सो सेम कॉन्सेप्ट एज SIP वर्सेस लमसम, कि मैं सारा पैसा एक साथ नहीं डालता हूँ, मैं मल्टीपल चंक्स में डालती हूँ कि Correct. चलो मुझे एक बेटर प्राइस बेटर मिलेगी प्राइस मिले। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो दैट्स व्हाट व्हाइट बॉक्स एल्गो इज। कुछ एग्जांपल्स दे सकते हो इसमें व्हाइट बॉक्स में और एग्जांपल्स? सो इसमें TWAP, VWAP, icebergs, they are the most used ones. So TWAP is time weighted average price. इसमें क्या होता है कि आपका लार्ज ऑर्डर जो है आप डिवाइड करते हो एक टाइम फ्रेम पे, जो वेनिला TWAP की बात कर रही हूँ मैं। तो आपके पास सपोज 1000 शेयर्स हैं, राइट, तो रादर देन सेंडिंग इट अक्रॉस इन वन गो, आप उसको 100 करके भेजोगे, सपोज एक मिनट के गैप में या एक सेकंड के गैप में। अच्छा, राइट। हाँ। सो दैट इज व्हाट TWAP इज। सो आप टाइम बेस आपके ऑर्डर को स्लाइस कर रहे हो। यस, कि हर सेकंड में या हर मिनट में आई कैन डिफाइन दैट कि कितने टाइम में मेरे को ऑर्डर स्प्लिट करके भेजना है। सो यहाँ पे बिकॉज ये कॉन्सेप्ट या लॉजिक इज नोन, इसके लिए इसको वाइट बॉक्स एल्गो बोलते हैं। यस यस। अच्छा, और ब्लैक बॉक्स क्या होता है? ब्लैक बॉक्स एल्गो, एज द नेम सजेस्ट, आपको स्ट्रैटेजी का पूरा डिस्क्रिप्शन नहीं मिलेगा। किसी की स्ट्रैटेजी IP है हु इज टेकिंग ब्लैक बॉक्स एल्गो अप्रूवल, राइट। अच्छा। तो वो स्ट्रैटेजी का सब कुछ तो नहीं बताएगा, वो बताएगा कि क्या क्या मैं ट्रेड कर सकता हूँ, कौन सी स्क्रिप्ट में ट्रेड होगा, कितना पैसा लगेगा, दैट्स समथिंग दैट कैन बी शेयर्ड, राइट। अच्छा। तो मोटा मोटा स्ट्रैटेजी क्या करेगी, दैट वुड बी गिवन इन द स्ट्रैटेजी डिस्क्रिप्शन फॉर ब्लैक बॉक्स एल्गोस। ओके, सो ब्लैक बॉक्स इज काइंड ऑफ, आपने जो IP बोला तो मतलब वो एक काइंड ऑफ अ सीक्रेट सॉस है जो सबके साथ शेयर नहीं करना चाहता, राइट? करेक्ट। सो उसको हम ब्लैक बॉक्स बोलेंगे। यस। सो ब्लैक बॉक्स और व्हाइट बॉक्स दोनों एल्गोस के लिए मेरे को RA होना कंपलसरी है? नहीं, सिर्फ ब्लैक बॉक्स के लिए RA होना कंपलसरी है, बिकॉज व्हाइट बॉक्स में तो एनी व्हिच वेज वी आर नॉट गिविंग एडवाइजरी। इट्स नॉट एन एडवाइस, इट्स एन एग्जीक्यूशनल एल्गो। यस। तो अगर ब्लैक बॉक्स है तो आपको RA बनना बहुत ज़रूरी है। यस। एंड टिपिकली ये एम्पैनलमेंट अगर करना है या एल्गो अप्रूव करवाना है
या आरए बनना है, तो क्या टाइम फ्रेम लगता है, कितना टाइम लगेगा? So there are multiple documents that are involved in this. आपको एक पूरा फॉर्म भरना पड़ेगा and it takes almost 2 months, 2 to 3 months to get end-to-end End to end. process completed. सो अगर आप एल्गो प्रोवाइडर हो, आज आप ऑलरेडी एल्गो प्रोवाइड कर रहे हो, अगर आपको एक्सचेंज के रेगुलेशंस को कंप्लाई करना है तो आज ही शुरू कर देना पड़ेगा वो Correct. एक्टिविटी, अगर 1 अक्टूबर तक कंप्लाई होना है। राइट एंड मतलब आई डोंट थिंक कोई भी थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म है जो कि सिर्फ वाइट बॉक्स एल्गो दे रही है, राइट, बिकॉज ब्लैक बॉक्स एल्गो इज द यूएसपी, क्योंकि वाइट बॉक्स तो आपको ऑन ब्रोकर प्लेटफॉर्म भी मिल ही जाएगा। व्हाई वुड समवन गो टू अ थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म टू एग्जीक्यूट दैट? करेक्ट, क्योंकि वहाँ पे एक्सपर्टीज मिल रही है, करेक्ट, एंड वो देने के लिए आरए बनना भी ज़रूरी है। इट्स नॉट Correct. दैट एनीबडी कैन क्रिएट दिस एल्गोस। इंटरेस्टिंग। सो ओके, ये एम्पैनल हो गया, एल्गोस अप्रूव करवा लिए, एंड देन आई एम गुड टू गो, और भी कुछ चेंजेस है इसमें? you are good to go, then You you are are good to go। एक बार आपको you need to get in contact with the TMs। TMs ब्रोकर्स, बेसिकली हम Brokers. जैसे ब्रोकर्स के पास सबको रजिस्टर नहीं बोलेंगे, बट टाई अप करना है, काइंड हाँ, ऑफ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होना चाहिए कि Contract sign एग्जैक्टली होना क्या यू नो ऑफरिंग्स है, ऑफरिंग्स है, क्या Business agreement रहेगा। arrangements रहेगा। यस, ओके। सो इसमें मैं एक पढ़ रहा था सर्कुलर में, एक पार्ट ये भी था कि जो सर्वर्स है, जो भी एल्गो प्रोवाइडर्स के जो सर्वर्स है जहाँ पे ये होस्ट होते हैं एल्गोज वगैरह, तो ये भी ब्रोकिंग प्रीमाइसेस के अंदर होना चाहिए, टीएम के प्रीमाइसेस में होना चाहिए? यस, तो ये स्पेसिफिकली मेंशन किया है इन सेबी सर्कुलर एज वेल एज द एसओपी दैट हैज़ बीन फॉर्मुलेटेड बाय एनएसई एंड बीएसई वेरियस एक्सचेंजेस कि सर्वर्स ब्रोकर प्रीमाइसेस में होने चाहिए एंड ऑर्डर्स जो जनरेट हो रहे हैं, तो बेसिकली स्ट्रैटेजी शुड बी इन ब्रोकर प्रीमाइसेस, द ऑर्डर्स बीइंग जनरेटेड शुड बी इन ब्रोकर प्रीमाइसेस इटसेल्फ। अच्छा, सो हम बाहर सर्वर्स नहीं रख सकते। अगर आपको एल्गो प्रोवाइडर की तरह सर्विस ऑफर करना है तो आपको ब्रोकिंग प्रीमाइसेस में ही, मतलब वहाँ पे आपको सर्वर्स होस्ट करने पड़ेंगे और वहाँ पे आप एल्गोस चला सकते हो। करेक्ट, तो स्ट्रैटेजी आपकी ब्रोकर सर्वर में होनी चाहिए, आपके ऑर्डर्स जनरेट ब्रोकर सर्वर में होने चाहिए। अच्छा, सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है फॉर एल्गो प्रोवाइडर्स, राइट। इंटरेस्टिंग। सो चलो, हमने बात की एक रिटेल कस्टमर के लिए, हमने उनकी लाइफ, अभी आई एम प्रीटी श्योर कि सबको समझ आ गया होगा कि उनकी लाइफ में भी क्या क्या चेंज है, एंड लाइकवाइज एल्गो प्रोवाइडर के लिए। अभी एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि एक ब्रोकर, हम जैसे ब्रोकर है, क्या हम एल्गो प्रोवाइड कर सकते हैं? डेफिनेटली, मतलब ब्रोकर्स तो आई थिंक सेबी खुद चाहता है बिकॉज इट इज द मोस्ट रेगुलेटेड, राइट, सो ब्रोकर्स शुड गेट इनटू दिस स्पेस एंड राइट नाउ अब क्योंकि पूरा रेगुलेटेड हो गया ये स्पेस, आई थिंक इट गिव्स यू द लेवल प्लेइंग ग्राउंड। क्योंकि पहले क्या होता था कि थर्ड पार्टीज आती थी, obnoxious रिटर्न्स वगैरह दिखा के पीपल यूज्ड टू गो देयर, राइट, सो दैट वाज टेक्निकली समथिंग जिसकी वजह से ब्रोकर्स तो ऐसा कभी कुछ नहीं करेंगे, राइट, बिकॉज दे नो एंड दे फुल्ली रेगुलेटेड, मतलब Fully तो उनको तो regulated. पूरा रेगुलेशन फॉलो करना ही है। राइट। सो ब्रोकर्स के लिए आई थिंक दिस इज अ विन विन सिचुएशन बिकॉज एवरीथिंग कम्स अंडर देयर एम्बिट नाउ। अच्छा, सो ब्रोकर्स कैन ऑल्सो गिव देयर एल्गोज, तो फॉर श्योर इसमें भी एल्गो अप्रूवल तो लेना ही होगा। यस, तो ब्रोकर्स का अप्रूवल भी प्रिटी सेम सिमिलर टू दैट ऑफ Algo थर्ड provider. पार्टी एल्गो प्रोवाइडर्स। सो सेम प्रोसेस है कि हमें भी स्ट्रैटेजी राइटअप देना पड़ेगा, हमें भी आरएमएस राइटअप देना पड़ेगा, मॉक पार्टिसिपेशन करना पड़ेगा, वील गेट एन ऑडिटर सर्टिफिकेट, वो फिर हम एक्सचेंज जाके अपलोड करेंगे एंड वील गेट एन एल्गो आईडी फॉर इट। ओके, और थोड़ा और हम एल्गो के अराउंड बात करते हैं। मैंने ये भी वर्ड बहुत ज़्यादा सुना है, जो भी एल्गो ट्रेडिंग बात करता है वो एक बार तो बैक टेस्टिंग का तो नाम लेता है। हाँ, तो क्या होता है बैक टेस्टिंग और क्यों ज़रूरी है बैक टेस्टिंग? सो सपोज मेरा एक हाइपोथेसिस है कि ये पर्टिकुलर कंडीशन है, इस ये मीट हुई बाय करूंगा, ये मीट हुई सेल करूंगा, राइट, ओके, बट क्या ये पैसा बनाता है ये अच्छा। आप समझेंगे कैसे? यू विल हैव Okay. टू सी कि क्या जैसा इंटेंडेड है हाँ। वैसा ये चला है पास्ट में, सो यू विल गेट द पास्ट डेटा, यू विल सी कि जो सिग्नल्स जनरेट हो रहे थे हाँ, क्या हाँ। सही में प्रॉफिट बना रहे थे, अच्छा, तो सही में रिटर्न्स वैसे ही मिल रहे थे जैसे चाहिए। तो जैसे कि मोमेंटम स्ट्रैटेजी है, राइट, उसमें आप देखेंगे कि जो प्रॉफिटेबल ट्रेड्स थे मेरे, हाँ, वो क्या ज्यादा प्रॉफिट बनाए थे, मच मोर देन द लॉस मेकिंग ट्रेड्स, राइट। मोमेंटम स्ट्रैटेजी में जनरली लॉस मेकिंग ट्रेड्स थोड़े ज्यादा होते हैं, बट अच्छा। जो लॉस होते हैं वो बहुत कम होते कम हैं, होता है। और जो प्रॉफिट मेकिंग ट्रेड्स होते हैं वो
थोड़े कम होते हैं परसेंटेज वाइज, बट प्रॉफिट बहुत ज़्यादा बना देते हैं. सो दैट अच्छा. इज हाउ यू सी कि मोमेंटम स्ट्रैटेजी अच्छा मेरी सही परफॉर्म कर रही है, राइट? अच्छा. So these are various ways you can see if your strategy is working well or not. तो basically आप historical data पे देखते हैं कि मेरी strategy ने perform किया जैसा मैं चाहता था कि नहीं. That's what a backtest is. सो बेसिकली आपका जो लॉजिक है वो हाँ. आप टेस्ट कर रहे हो ऑन द हिस्टोरिकल डेटा Right. टू गेट अ सेंस कि अगर यही चीज अगर मैं लास्ट मे बी 1 साल या 2 साल चला था या वट इसके पीछे भी अगर चला था तो कैसा उसने परफॉर्म किया होता, ये पूरा एनालिसिस दे देगा. Correct. जैसे आपने मोमेंटम में बताया कि प्रॉफिट के नंबर ऑफ ट्रेड्स कम होंगे बट वैल्यू ज़्यादा है. लाइकवाइज लॉस में उल्टा है कि ट्रेड्स बहुत ज़्यादा है लेकिन लॉसेस छोटे छोटे हैं. Correct. सो इससे आपको पूरा पिक्चर मिल जाएगा फॉर यू टू गेट कॉन्फिडेंस कि वेदर आपका एल्गो अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा कि नहीं करेगा, कंसिडरिंग आपका सेम सिनेरियो है जो हिस्ट्री में था वही सेम सिनेरियो आगे भी कंटिन्यू होता है तो सिमिलर रिटर्न्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. Obviously market regime तो कोई भी गारंटी नहीं कर सकता है, but if it works as the algo wants then definitely why not. इंटरेस्टिंग. सो हमने बहुत सारी चीज़ें आज बात करी, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशन था. आई एम होपिंग कि जो अपने ऑडियंस है उनको भी काफ़ी क्लैरिटी मिला होगा. सो हमने काफ़ी सारी चीज़ें बात करी, जैसे एल्गो ट्रेडिंग क्या होता है, कौन करते हैं एल्गो ट्रेडिंग, जो सर्कुलर आया है वो कैसे इवॉल्व हुआ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. जैसे आपने कुछ चीज़ें बात करी थी कि एक एल्गो प्रोवाइडर अगर एल्गोस प्रोवाइड करा तो उनको वो रिटर्न्स नहीं दिखा सकते, जो काफ़ी हद तक रिटेल को मतलब रिटेल वो फॉलोइंग फॉर इट, यू नो, वो उसके ट्रैप में फंसते थे और दिखता था कि यार बहुत ज़्यादा रिटर्न्स हो सकता है जब एक्चुअली में नहीं होता है. सो ऑन दैट बेसिस ऑल्सो सर्कुलर्स हैज इवॉल्व्ड फॉर एक्सचेंजेस एंड ब्रोकर्स ऑल्सो टू नो कि ऑर्डर्स कहाँ से आ रहे हैं. बहुत क्लियरली स्पेसिफाई किया कि एक रिटेल कस्टमर और एल्गो प्रोवाइडर और ब्रोकर के क्या क्या रूल्स है. सो आई एम श्योर कि सबको भी एक बार ये सर्कुलर पढ़ लेना चाहिए. एंड जो भी चेंजेस है जो भी आज भी हमने डिस्कस किया, आई थिंक ऑल द कस्टमर्स एंड एल्गो प्रोवाइडर्स को जितना जल्दी हो सके उनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए. एंड वी एज 5paisa हमारे पास भी ये सारे ऑफरिंग्स है, हम सपोर्ट कर सकते हैं. एंड आपको जब भी इस सब की नीड है प्लीज़ रीच आउट टू अस and we'll help you get your algo IDs approved, get you empaneled and make you trade ready before the guidelines go live, before the circular goes live. So thank you so much Kashish, it was great talking to you, it were great insights. And any last जाते कुछ टिप्पणियां So अगर if you one want to thing I give. want to highlight here because I think I missed it, but we as 5paisa we are coming up with our own platform very soon, so we would really want you to have a look at it, see what all strategies we are bringing strategies from various RAs, in-house strategies which will definitely benefit you because this would be well researched, well back tested and well audited as well subsequently. So we hope that you like the platform that we are coming up with. Yeah, so please watch out. ये बहुत जल्दी आने वाला है. So now we'll have our own algos. So हमारे प्लेटफॉर्म पे भी आके आप algos प्लेस कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो. So thank you for watching. I hope you would have liked this episode. And ये आज पहला था. We'll keep having these kind of episodes going forward. आपके लिए यही सारे कॉम्प्लेक्स चीज़ें और थोड़ा इजी वे में कैसे आप आपको एक्सप्लेन कर सके. We'll try our best to keep coming out with such episodes. So thank you so much. Thank you very much Kashish for taking out time for us and explaining things in much simpler way. I hope this helps to everyone. So yeah, thank you.